Students, now let us discuss what is electric potential and what is the electric potential energy for different systems of charges. Now in the previous lecture we have already seen that if a charge is there, it will produce electric field around it. So if we are keeping a charge plus q here, what it will do is it will generate electric field in all the directions around it. If we are to bring some other charge at any point in this field, then we will have to do some work, external work against, if this is a positive charge, then against the repulsive force exerted by this charge plus q, we will have to perform work. And what happens to this work that is done after the charge is brought here? इस charge को अगर यहाँ पे लेके आ जाएंगे तो उसके वो जो work perform करना पड़ा उसका क्या हो जाएगा? It will remain stored in the form of electrostatic potential energy. Okay, we are talking about this electrostatic potential energy. You know that if a charge q is placed at any point, then from this charge at a distance r, the electric potential that will be generated is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 q upon r, where r is what? The distance of this point. ओके सो ये अगर इस पॉइंट पे देखेंगे तो यहाँ कुछ और पोटेंशियल होगा, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ कुछ और पोटेंशियल होगा, डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस. क्लियर? अब इस पॉइंट पे अगर हम लोग ये जो चार्ज है Q, यहाँ से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे दूसरा अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मीन्स +1 कूलम चार्ज, अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा है तो इसका और उस चार्ज का कोई रिलेशन ही नहीं है. It is not affecting, it is not influencing that charge in any way. इसीलिए they are independent. इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि the potential energy of the system of charges in which they are at infinite distances is equal to 0. लेकिन अगर उस चार्ज को हम लोग धीरे 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 पास में लाएंगे, so what will happen? This charge, this is also a positive charge, ये क्या करेगा? उस पे repulsive force exert करेगा. अब उस रिपल्सिव फोर्स के बावजूद भी उस चार्ज को अगर यहाँ पे लाना है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? वी विल हैव टू परफॉर्म सम वर्क. नाउ दिस वर्क विल रिमेन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. +1 कूलम का चार्ज को किसी भी पॉइंट तक लाने के लिए जो भी वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा, दैट वर्क इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ दिस चार्ज. क्लियर? सो electric potential या electrostatic potential is given by this formula V. It is represented by V. इसको क्या करते हैं हम लोग? VR बोलते हैं, मतलब potential at a distance R from this. This is equal to this. Clear? So then work done is equal to what? Potential at any point multiplied by the charge that you are bringing. So ये अगर Q1 के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया हुआ है या यहाँ पोटेंशियल बनाया है, यहाँ पे अगर हमको Q2 लाना है, सो पोटेंशियल एट दैट पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज दैट वी आर ब्रिंगिंग इन विल गिव यू व्हाट? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम. क्लियर? अब इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है ये हम लोगों को समझना जरूरी है. हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में इसको देखा था. इक्वी मीन्स सेम, पोटेंशियल इज पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब वो सरफेसेस जिसमें कि हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम. अगर यहाँ पे भी है तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है. एट ऑल पॉइंट्स द पोटेंशियल इज सेम. सच सरफेस इज कॉल्ड एज इक्विपोटेंशियल सरफेस. सो इक्विपोटेंशियल सरफेस इज अ सरफेस which has same potential, yeah, which is at for which all the points are at the same potential. This is called as equipotential surface. ये ऐसा सरफेस है जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा. अब अगर दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक अगर हमको कोई चार्ज शिफ्ट करना है तो since they are at the same potential, what is the work done? Work done will be equal to what? 0. So if the 2 points are at same potential, then the work done to move a charge or to displace a charge between those 2 points is equal to 0. मतलब यहाँ के किसी भी पॉइंट पे अगर आपको चार्ज को मूव करना है,
किसी भी पॉइंट के बीच में, तो वर्क कितना परफॉर्म करना पड़ेगा? 0. व्हाई? बिकॉज दे आर इक्विपोटेंशियल, दे आर ऑल इक्विपोटेंशियल, सेम पोटेंशियल। अब ये मिलेगा कैसे? सपोज एक यूनिट चार्ज, कोई एक पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे रखा हुआ है, पॉइंट चार्ज, तो इसका तो पोटेंशियल सेम रहेगा सेम डिस्टेंस पे। इसका मतलब सपोज एक बॉल है हमारे पास, से बास्केटबॉल है, उसके सेंटर में हमने एक चार्ज रख दिया है, तो बॉल का सरफेस है वो तो सारे पॉइंट्स एक ही डिस्टेंस पे है फ्रॉम द सेंटर और फ्रॉम द चार्ज। इसका मतलब उस बॉल के सारे पॉइंट्स पे जो पोटेंशियल होगा वो कैसा है? सेम है। इसीलिए वो बॉल का जो सरफेस है दैट इज कॉल्ड एज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इज दिस पॉइंट क्लियर? लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसा लाइन चार्ज है, सपोज ये ट्यूबलाइट है, ओके, यहाँ पे चार्जेस है, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा ये कैसा होगा? ये इस डिस्टेंस पे, सेम डिस्टेंस पे सेम पोटेंशियल होगा, ओके, तो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या फॉर्म क्या होगा? इट विल बी अ सिलेंड्रिकल। क्लियर? उस सिलेंडर के कर्व सरफेस पे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल कैसा होगा? सेम होगा। और ऐसे पॉइंट्स पे अगर हम लोगों को किसी चार्ज को मूव करना है तो वर्क डन विल बी इक्वल टू 0. व्हाई? बिकॉज दे आर ऑल एट द सेम पोटेंशियल। क्लियर? सो दिस इज अबाउट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस. Now let us see potential energy, electric potential energy of different systems of charges. अब आप लोग जानते हो कि if suppose we have got a two charge system, ये टू चार्ज सिस्टम का मतलब क्या है? कि दो चार्जेस को हमने किसी पॉइंट पे लाके रख दिया है। सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। अब पहले तो दो चार्जेस इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है एक दूसरे से। नाउ ऐसे एक चार्ज को मैं क्या करता हूं, इनफाइनाइट डिस्टेंस से यहां ले आता हूं एट पॉइंट ए, विच इज एट अ डिस्टेंस r1 फ्रॉम द ओरिजिन। चार्ज Q2 जो है वो अभी भी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। इसका मतलब इज देयर एनी इंटरेक्शन बिटवीन Q1 एंड Q2? नो। इसका मतलब द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम विल बी इक्वल टू व्हाट? 0। लेकिन अब अगर मैं उस चार्ज को, जो कि खुद भी पॉजिटिव चार्ज है, ये Q1 इज ऑल्सो अ पॉजिटिव चार्ज, इसको अगर लाता हूं धीरे धीरे मैं Q1 के पास में, तो व्हाट विल हैपन? अब उनका इंटरेक्शन शुरू हो जाएगा। Q1 ने बनाए हुए पोटेंशियल में या Q1 ने बनाए हुए इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं अगर Q2 को ला रहा हूं, so there will be interaction between these two and therefore now I have to perform work. मुझे वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा इस चार्ज को अंदर लाने के लिए। क्यों? क्योंकि ये तो इसको बाहर पुश कर रहा है। So what happens to this work? This remains stored in the form of electric potential energy. So Q2 को मैं वर्क परफॉर्म करके यहाँ पे ले आता हूँ at point B which is at a distance R2, मतलब इसका पोजीशन वेक्टर है R2. So this is charge Q2. ये जो है डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन A and B, that is Q1 and Q2, this is equal to what? R12. Clear? अब देखो Q1 के कारण at point B, what is the potential? So potential at point B will be equal to what? It is because of Q1. So this is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 upon R12. ये डिस्टेंस है ना? Now, if I am bringing this charge Q2, then the work performed by me and therefore the work performed by me will be equal to what? 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 upon R12. ये क्या है? Potential. Multiply this by Q2. क्यों? क्योंकि यूनिट चार्ज +1 कूलम चार्ज को अगर मुझे लाना है तो इतना वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा। तो Q चार्ज को लाना है तो कितना वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा? Q2 से मल्टीप्लाई करो। क्लियर? So this is the work and this remains stored in the form of potential energy. Therefore potential energy of the system of the two charges will be equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon R1. ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। ये सिस्टम को हमने क्या कर दिया? असेंबल कर दिया है। क्लियर? ये तो सिस्टम पहले थी ही नहीं, चार्जेस इनफाइनाइट डिस्टेंसेस पे थे। अब वहां से दोनों सिस्टम चार्जेस को यहाँ लाके रखना, मतलब व्हाट वी आर डूइंग, वी आर असेंबलिंग दिस चार्जेस। सो द वर्क डन टू असेंबल द चार्जेस बाय ब्रिंगिंग देम फ्रॉम
infinite distance from each other to their present positions. This is called as what? The electrostatic potential energy of the system of charge. Clear? So ये तो हो गया टू चार्ज सिस्टम. अगर 3 चार्ज सिस्टम अगर है तो क्या होगा? 3 चार्ज सिस्टम में देखिए, सबसे पहले तो दिस इज एक्स वाई जेड. सबसे पहले तो हम लोग चार्ज Q1 लाके यहां खड़ा कर देंगे. दिस इज एट अ डिस्टेंस R1. ओके. अब इसका तो किसी से इंटरेक्शन है नहीं, तो कोई वर्क परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है. अब मैं क्या करता हूं, मैं चार्ज Q2 को इनफाइनाइट डिस्टेंस से यहां लाता हूं. So now I have to perform work against the repulsive force exerted by Q1. इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं इसको ला रहा हूं, सो मुझे वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा. इसका मतलब वर्क परफॉर्म जो करना पड़ेगा, दिस विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0. पोटेंशियल एट दिस पॉइंट क्या होगा? ये अगर R2 डिस्टेंस पे है ओरिजिन से, तो ये क्या डिस्टेंस है? R12. क्लियर? सो दिस विल बी इक्वल टू Q1 अपॉन R12. ओके. अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? भाई क्या चार्ज ला रहे हैं? Q2. इज दिस ओके? अब इसके बाद मैं चार्ज Q3 भी लाता हूं. अब Q3 जब मैं लाऊंगा, सो इट विल हैव टू डू वर्क अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्सेस एक्सर्टेड बाय बोथ Q1 एज वेल एज Q2. ओके. सो वो जो वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा, सो दिस इज W1. W2 विल बी इक्वल टू व्हाट? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपॉन R13. इससे और इसके बीच का डिफरेंस R13 इनटू दिस चार्ज Q3 प्लस ये भी तो पोटेंशियल बनाएगा यहाँ पे. सो ये क्या पोटेंशियल बना रहा है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 अपॉन R23. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस. ओके. मल्टीप्लाइड बाय Q3. तो ये वर्क परफॉर्म W2 will be equal to what? 1/4 pi epsilon 0. ये क्या हो जाएगा? Q1 Q3 अपॉन R13. क्लियर? प्लस ये इसको सेपरेट करते हैं. ओके. Q1 अपॉन R13 प्लस Q2 अपॉन R23 इंटू Q3. फिर Q3 यहां लिख दो. So what is the total work done? Total work done is equal to W1 plus W2. So this is equal to the potential energy of the system. This is equal to how much? 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस ये क्या है? Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 upon R23. This is the potential energy, total potential energy of the system. Okay? अगर n चार्जेस होंगे तो वही करना पड़ेगा फिर. ओके. तो मतलब n चार्जेस के केस में क्या करेंगे हम लोग? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0. यहाँ पे क्या होगा? Q1 Q2 अपॉन R12. ओके. Q1 Q3 अपॉन R13. Q1 Q4 अपॉन अप टू n. फिर Q2 Q3 अपॉन R23. Q2 Q4 अपॉन R24. इस तरह से हम लोगों को टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी पड़ेगी. ओके. अब इस चीज में देखो, जो चार्जेस थे वही इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे थे और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग दूसरे चार्जेस को ला रहे थे. अब सपोज हमको एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी हमने प्रोड्यूस कर रखा है. वी डू नॉट नो कि ये है आया कहां से. अब इनमें हमको दूसरे इंडिविजुअल चार्जेस यहाँ पे लाने हैं. से चार्ज Q मुझे यहाँ पे ले आना है, तो मुझे क्या पता होना चाहिए भाई किसी भी पॉइंट पे व्हाट इज द पोटेंशियल. क्लियर? यहाँ का अगर पोटेंशियल मुझे पता है तो यहाँ की जो पोटेंशियल एनर्जी है, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? VR मल्टीप्लाइड बाय Q. इज दिस पॉइंट क्लियर? सो किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है, सो वहां का पोटेंशियल से मैं मल्टीप्लाई करूंगा किसे? जो भी मैं चार्ज ला रहा हूं. तो व्हाट आई विल गेट द वर्क डन इन ब्रिंगिंग दैट. इसका मतलब दैट इज इक्वल टू व्हाट?
the potential energy, electric potential energy or electrostatic potential energy of the system. Clear? So external field में अगर मैं बाहर से चार्ज लेके आता हूँ, so इसका पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मुझे कैसे पता चलेगा? मैं उसको मल्टीप्लाई करूंगा बाय द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट. ओके, सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. ये इलेक्ट्रिक फील्ड का Q से कोई लेना देना नहीं है. ओके, या फिर दूसरा एक चार्ज में Q2 भी यहाँ लाता हूँ, तो देखिए पहले वाले का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? V1R मल्टीप्लाइड बाय Q1. ओके, दूसरा मैं लेके आता हूं एट अनदर पॉइंट जहां पे पोटेंशियल कितना है? V2R. सो इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं जो भी चार्ज लेके आया, ये दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. क्लियर? यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, यहाँ से मैं बाहर से ले आता हूँ चार्ज Q1, यहाँ से लेके आता हूँ Q2. ओके, तो इसका कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा, इसका कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा, इन दोनों को मैं ऐड करूंगा, आई विल गेट व्हाट? द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द एंटायर सिस्टम. पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा. ओके, चलो अब हम लोग लास्ट टॉपिक आज का डिस्कस करेंगे कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं कोई डाइपोल लाता हूं, क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी of a dipole in an electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? इट इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की. ओके, यूनिफॉर्म है. यहाँ पे ये डाइपोल रखा हुआ है. आप लोग जानते हो कि डाइपोल इज व्हाट? -q और +q इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस रखे हुए हैं एट डिस्टेंस 2l. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 2l, डाइपोल लेंथ के बराबर. अब यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट है, दैट इज, यू नो, डाइपोल मोमेंट इज q मल्टीप्लाइड बाय 2l. दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय p वेक्टर. ये p वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा कैसा होगा? दिस विल बी फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज. Now what is the force experienced by this charge? It will be Q into E in the direction of electric field. ये negative charge है, this will experience a force minus Q into E opposite to the direction of electric field. So this is a system of equal and opposite charges separated by some distance. Okay, इसी को हम लोग couple बोलते हैं. And couple does what? It exerts torque. Now you know very well torque tries to rotate this system. तो ये टॉर्क क्या करेगा? इसको रोटेट करने की कोशिश करेगा. Now if p वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इनके बीच का एंगल अगर थीटा है, so this torque experienced, this is equal to p वेक्टर क्रॉस ऑफ e वेक्टर. मतलब this is equal to, torque is equal to p into e into sin of theta. Okay, now सपोज इनिशियली मेरा ये डाइपोल है, वो एंगल थीटा 0 पे रखा हुआ है. अब मैं क्या करता हूँ? इसको थीटा 0 से थीटा के एंगल पे रोटेट करता हूँ. समझ में आ रहा है? पहले यहाँ रखा था, अब मैं इसको ऐसे रोटेट करता हूँ. सो आई हैव रोटेटेड इट फ्रॉम थीटा 0 टू द एंगल ऑफ थीटा. इसमें मुझे वर्क परफॉर्म कितना करना पड़ रहा है? सो वर्क परफॉर्म, टोटल वर्क परफॉर्म which will remain stored in the form of potential energy, this is equal to what? This is equal to the integral of p vector dot across of e vector, मतलब p e into sin of theta. इसका मैं इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करूँ? फ्रॉम थीटा 0 टू थीटा. ओके, तो ये कितना हो जाएगा भाई? u is equal to, p तो कांस्टेंट है फॉर अ गिवन डाइपोल. स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी आप लोग जानते हो, दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कांस्टेंट है. साइन थीटा का इंटीग्रल क्या होगा? माइनस ऑफ कॉस ऑफ थीटा. ओके, फ्रॉम थीटा 0 टू थीटा. सो दिस इज इक्वल टू पी ई इंटू
माइनस कॉस ऑफ थीटा, ये थीटा को थीटा की जगह रखो, माइनस कॉस ऑफ थीटा, ओके, माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट इसमें डालिए माइनस कॉस ऑफ थीटा 0. सो दिस इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सो पी ई इंटू, इसको पहले लिख देंगे, फिर कॉस ऑफ थीटा 0 माइनस कॉस ऑफ थीटा. This is what? This is equal to the work done in rotating the dipole from initial angle of theta 0 to final angle of theta. Clear? Now, इसमें दो different cases हो सकती है. Now, suppose initially this dipole was at angle pi by 2. Okay. If theta 0 is equal to pi by 2, that means what? Initially, if the dipole is perpendicular to the direction of electric field, ऐसा था, तो इस केस में the work done, that is the electrostatic potential energy, will be equal to P into E into cos of theta 0 क्या है इस केस में, cos of pi by 2 minus cos of theta. Okay, so this will be, this is cos of pi by 2 is 0, so this is equal to minus P E into cos of theta. तो अगर स्टार्टिंग में ऐसा था और फिर हमने ऐसा कर दिया है, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू माइनस पी इंटू कॉस ऑफ थीटा. बट अगर स्टार्टिंग में हमारा डाइपोल ऐसा था, मतलब इफ इट वाज पैरेलल, तो थीटा 0 इज इक्वल टू व्हाट, इट इज 0. सो वर्क डन विल बी इक्वल टू पी ई इंटू कॉस ऑफ 0 minus cos of theta. Okay, so this will be equal to what? This will be equal to PE, cos of 0 is what? 1 minus cos of theta. ये होगा electrostatic potential energy of this dipole which is rotated from an angle of theta 0 to an angle of theta between what and what? Between P vector, which is the dipole moment vector, and E vector, which is the direction of the electric field. Okay, I'm sure that you have completely understood the topics. Okay, numerical problem solve करने के लिए ये सारे concepts काम में आएंगे, formulas भी काम में आएंगे. Okay, thank you very much for viewing this video.